بننے کا, اچھا دکھائی دینے کا. جو بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو میری طرح کپڑے پہنتے ہیں, جو میری طرح ایکٹ کرتے ہیں. جب میں ہدیہ دیتا ہوں تو وہ بھی دینا چاہتے ہیں, جب میں گاتا ہوں تو وہ بھی مجھے دیکھ کر گانا چاہتے ہیں, جب میں اچھا پرفارم کر رہا ہوں تو وہ بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں. ہاں, مگر ان کی نیت, ان کی انٹینشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہ تیری بادشاہی کے لیے نہیں کر رہی بلکہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. وہ تیری سلطنت کے لیے نہیں کر رہے بلکہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. باپ آسمانی, مجھ پر فضل کر, مجھ پر رحم کر کہ میں اس بناوٹی مسیحی سے, اس فیک کرسچن سے ایسا فاصلہ رکھوں کہ وہ مجھے افیکٹ نہ کرے, اس کا سایہ مجھ پر نہ پڑے, اس کی کرنیں مجھ پر نہ پڑے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری حقیقی مسیحی زندگی بری طرح متاثر ہو اور میں تباہ ہو جاؤں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بیج, کوئی ایسا دانہ, کوئی ایسی جڑی بوٹی آپ کو افیکٹ کر رہی ہے, آپ کو تباہ کر رہی ہے, تو ڈسٹنس اختیار کیجئے. آپ اسے اکھاڑیے نہ, خدا خود کام کرے گا اور اسے آپ کی زندگی سے الگ کر دے گا. آپ خدا سے دعا کیجئے, خدا یہ شخص, یہ بیٹی, یہ بھائی, یہ آدمی تیری فصل کے لیے, تیری کلیسیا کے لیے, تیرے لوگوں کے لیے خدا نقصان کا باعث ہے, اسے خود الگ کر. متی کی انجیل مقدسہ اس کا 13واں باب اور 24ویں سے 30ویں آیت تک ابھی آپ نے تلاوت میں سنا ہے کہ یہاں یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں, اور شاگردوں سے بات کرتے ہوئے انہیں تعلیم دیتے ہوئے مختلف تمثیلوں کے ذریعہ سے, پیربلز کے ذریعہ سے وہ ان سے بول رہا ہے. اور یہاں پر جو پیربل یسوع مسیح نے بیان کی ہے اسے ذرا دھیان سے سنیے گا. لکھ رہا ہے کہ اس نے ایک تمثیل ان سے کہی اور کہا کہ ایک بیج بونے والا نکلا ہے, اور یہ جو تمثیل ہے بنیادی طور پر یہ تمثیل آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے ہے. اور آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے یسوع مسیح بولتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے کے لیے نکلا, اور اس نے اچھے بیج جو ہے وہ بوئے ہیں. کون سے بیج بوئے ہیں؟ اچھے بیج جو ہے وہ اپنے کھیت میں بوئے ہیں. مگر رات کو سوتے وقت جب سب لوگ سو رہے تھے تو اس وقت دشمن آیا اور ان اچھے بیجوں کے ساتھ اس نے کڑوے دانے, یعنی خراب دانے, ایسے دانے جو اصل دانوں سے ملتے جلتے ہیں مگر وہ ان جیسے ہیں نہیں ہیں, ان جیسی ان کی تاثیر نہیں ہے, انہیں بھی انہی بیجوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں جب سب لوگ سو رہے تھے انہیں بو ڈالا. اور پھر وہ چپکے سے یہاں سے نکل گیا. اور پھر جب فصل ہوئی, فصل کاٹنے کا وقت آیا, تو جو نوکر تھے مالک کے وہ فصلوں میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اچھے بیجوں کے ساتھ جو فصل آئی ہے ان کے ساتھ جڑی بوٹیاں اور کڑوے دانوں کی بھی ایک فصل جو ہے وہ اگی ہوئی ہے. وہ بھاگ کر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہنے لگے, اے مالک, کیا تجھے معلوم نہیں ہے, کیا تو جانتا ہے یا ایسا ہے کہ تو نے اچھے بیجوں کے ساتھ کڑوے بیج بھی بوئے تھے, یا اچھے بیجوں کے ساتھ تو نے برے بیج بھی بوئے تھے؟ کیونکہ وہاں پر ایک فصل نہیں ہے بلکہ فصل کے اندر ایک فصل ہے جو بری فصل بوئی گئی ہے. اور کیا تو نے ایسا کیا؟ مالک نے کہا نہیں, یہ میں نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے ہمارے دشمن نے ان اچھے بیجوں کے ساتھ ساتھ کڑوے بیج بھی جو ہے وہ بو دیے ہیں. تو پھر نوکروں کا آگے یہ سوال تھا, اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا جائیں اور ان کڑوے بیجوں کی جو فصل آئی ہے اسے کاٹے, اکھاڑے اور فصل سے باہر دے مارے؟ یسوع مسیح کا جواب تھا کہ اس مالک نے اپنے نوکروں سے کہا نہیں, انہیں بڑھنے دو. کیا کرنے دو؟ انہیں بڑھنے دو. جب فصل کی کٹائی کا وقت آئے گا تو اس وقت میں سب سے پہلے جو کڑوے بیجوں کی فصل ہے اسے نکالوں گا اور باہر پھینکوں گا, اور اس کے بعد جو اچھی فصل ہے اس کا حاصل لوں گا. تو یہاں پر یہ جو سٹوری ہے, یہ پیربل جو ہے, یہ ایک بناوٹی مسیحی کے تعلق سے ہے. ایک بناوٹی یعنی آرٹیفیشل یا فیک کرسچن کے تعلق سے ہے کہ بہت سے ایسے کرسچنز ہیں چرچز کے اندر جو فیک ہیں, جو جھوٹے ہیں, جو بناوٹی ہیں. ان کے تعلق سے یہاں پر سٹوری یسوع مسیح نے بیان کی ہے. آج پوری دنیا میں کاؤنٹرفیٹ کا جو کانسیپٹ ہے یا بناوٹی چیزوں کا کانسیپٹ ہے وہ عام ہے. آپ کو معلوم ہے پاکستان ہے, انڈیا یا دنیا کا کوئی بھی ملک کیوں نہیں ہے, وہاں ایک کرنسی عام چلتی ہے. ہمارے پاکستان میں کرنسی کا کانسیپٹ موجود ہے, آپ بھی سے جانتے ہیں کہ نقلی روپیہ بنایا جاتا ہے. نقلی روپیہ بنایا جاتا ہے, اور نقلی روپیہ جو بنایا جاتا ہے وہ اصلی روپے سے بالکل ملتا جلتا ہے. اور کوئی عام
آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا کہ اصلی جو نوٹ ہے اس کے ساتھ اگر نقلی نوٹ بھی مارکیٹ میں آ جائے نا تو اسے پہچاننا مشکل ہو جائے گا. جب تک کہ آپ نے ریئل نوٹ جو ہے, ریئل کرنسی جو ہے, اس کی صحیح طرح سے سٹڈی نہیں کی ہوئی. اگر آپ کو صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے کہ اصل کرنسی جو ہے وہ کس طرح کی ہے, اس کی ٹائپ کیا ہے, اس کے کلرز کیا ہو سکتے ہیں, اس کے اندر کون کون سی چیزیں لکھی گئی ہیں, اس کے اندر کون کون سے امیجز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں, اگر آپ کو مکمل طور پر معلوم نہیں ہے ریئل کرنسی کا تو آپ ایزیلی جو ہے وہ دھوکہ کھا جائیں گے اور ڈسیپشن کا شکار ہوں گے, اور وہ جو نقلی ہے, جو بناوٹی ہے, جو دھوکے والی ہے, اسے آپ مارکیٹ میں لائیں گے اور استعمال کریں گے, مگر نتیجتاً آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. ہو سکتا ہے آپ اس کے نتائج بھگتے اور آپ کو اس کے افزانہ میں پکڑا جائے. تو یسوع مسیح یہاں پر ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہی فصل ایک ہی کھیت کے اندر گرو کر رہے ہیں. یعنی جیسے میں عموماً کہتا ہوں کہ سیٹن ایز اے چرچ ود ان دا چرچ, کہ ابلیس نے چرچ کے اندر بھی ایک اپنا چرچ لگایا ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں کی تعلق سے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں. اور یہ دیکھیے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ دیکھو یہ میرا کام نہیں ہے. مالک نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے, میں نے تو اچھے بیج بوئے تھے, میں نے تو اچھی فصل کے لیے بیج بوئے تھے, مگر رات کے پہروں میں, اندھیرے میں جب لوگ سو رہے تھے تو دشمن آیا, یعنی ابلیس آیا اور اس نے کڑوے دانے بھی بوئے ہیں. اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں آج جو ہے ایسے لوگ موجود ہیں جو دعوے دار ہیں, they claim to be Christians, they claim to be believer, but when it comes to their test, آپ یہ easily کہہ سکتے ہیں کہ they are counterfeit. وہ نقلی ہیں, وہ بناوٹی ہیں. اور انہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگ چاہیے, جس طرح یہ دیکھیں لکھا کہ اس کے نوکر فصل کاٹنے کے لیے گئے, جب وہ کام کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ تو نقلی فصل ہے, یہ اصلی فصل نہیں ہے. وہ مالک کے پاس دوڑ کر گئے اور کہنے لگے مالک کیا کریں, کیا انہیں اکھاڑ پھینکے؟ مالک نے کہا نہیں, let them grow, انہیں بڑھنے دو. تو اس کا مطلب ہے اصل کرسچن اور نقلی کرسچن دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس لیے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا چرچ ہے یا دنیا کا کوئی بھی چرچ کیوں نہیں ہے, پوری دنیا میں ایک بات الارمنگ ہے کہ کاؤنٹرفیٹ کرسچنز جو ہے ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, نقلی بناوٹی کرسچنز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور مجھے اور آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جو کوئی بینک میں کام کرتا ہے یا کرتا رہا ہے, انہیں معلوم ہے کہ اس سے بیشتر کہ وہ وہاں پر بیٹھے یا جو ٹیلرز ہوتے ہیں انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے نقلی نوٹ کی پہچان کرنی ہے, اور وہ ایزیلی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ نقلی ہے اور یہ اصلی ہے. میرے لیے شاید مشکل ہو, آپ کے لیے شاید مشکل ہو کہ میں آئیڈینٹیفائی کر پاؤں کہ اصل کون سا ہے اور نقل کون سا ہے, مگر اگر مجھے اس کی سٹڈی ہے یا میں نے اسے تعاونی جو ہے وہ سٹڈی کیا ہوا ہے تو میں پھر آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ یہ اصلی ہے, یہ نقلی ہے, یہ ریئل کرسچن ہے, یہ فیک کرسچن ہے. آمین. اسی طرح بلیورز کو, ایمانداروں کو جو چرچ کے اندر ہے, ان کے پاس ایک ایسا کرائیٹیریا ہونا چاہیے, ایک ایسی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ وہ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں کون فیک ہے اور کون ریئل ہے. آمین. تو میں اور آپ جب تک ہم ایک لائن ڈرا نہیں کر سکتے اصل میں اور نقل میں, یاد رکھیے ہم کہیں بھی دھوکہ کھائیں گے. ہم مارکیٹ پلیسز میں بھی دھوکہ کھائیں گے, ہم چرچ میں بھی دھوکہ کھائیں گے, اور ہم دنیا کے کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہو ہمیں ایزیلی ڈسیو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ کاؤنٹرفیٹ کرسچن جو ہے یا بناوٹی یا نقلی کرسچن جو ہے وہ آپ کو ویسا ہی دکھائی دے گا جیسا میں ہوں. ہو سکتا ہے وہ خادم ہو, پیسٹر ہو, وہ پروفٹ ہو, وہ مبشر ہو, وہ رسول ہو, یعنی ایسے تمام کے تمام لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے مارکیٹ پلیس میں, چرچ کی دنیا میں موجود ہوں, مگر جب تک مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے, یہ کہہ لیجئے مجھ میں یہ ایجوکیشن نہیں ہے کہ میں نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, میں اور آپ کہیں بھی دھوکہ کھائیں گے. تو ایک بات تو سچ ہے کہ پوری دنیا میں مجھے اور آپ کو ڈسکریجمنٹ کا شکار نہیں ہونا. جہاں پر اچھے دانے ہوتے ہیں وہاں پر برے دانے بھی ہوتے ہیں, اور برے دانے بونا جو ہے میرا کام نہیں ہے,
इब्लीस का काम है। वो हमेशा बुरे दाने बोलता है। और मैं आपको बताऊं कि पैदाइश से लेके आप जेनेसिस से रेवलेशन तक स्टडी करें तो आपको मुसलसल मिलेगा किताब मुकद्दस में जहां पर हकीकी नबी मौजूद थे वहां पर झूठे नबी भी मौजूद थे। एलिया के जमाना में झूठे नबी भी थे और हकीकी नबी थे। मिकाया के जमाना में भी सच्चे नबी भी थे और झूठे नबी भी मौजूद थे। यानी फॉल्स और ट्रू प्रॉफिट्स जो है ये हमेशा से रहे हैं। बैन इसी तरह एक हकीकी ईमानदार और एक जाली ईमानदार हमेशा मौजूद रहता है। मगर आइडेंटिफाई करना मेरा और आपका काम है। वो कैसे कर सकते हैं? जब तक आपके पास किताब मुकद्दस का इल्म नहीं है आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं इजीली कर सकते और आप किसी की भी जजमेंट नहीं कर सकते कि ये झूठा है और ये सच है। हमारा मुखालिफ कॉमन है और वो इब्लीस है और वो हमेशा से कॉपी करता चला आया है। हमेशा से कॉपी करता है किसकी? याहवे की या हवा पाक खुदा की। उसका काम ही ये है कि वो नकल करे और वो ना सिर्फ खुद नकल करता है बल्कि अपने लोगों से भी नकल करवाता है और हर वो चीज जो खुदा ने पैदा की है वो उसकी नकल पैदा करता है। वो उसकी नकल बनाकर दुनिया के सामने रखता है। और किताब मुकद्दस में मैं अमूमन कहता हूं कि देखें लिखा है कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। और मेरे और आपके मुखालिफ ने क्या किया? उसने एक गंगा देवी बनाई है। उसने कहा कि देखें खुदा की रूह तो किसके ऊपर हावर करती है? पानियों की सतह पर। तो मेरे और आपके मुखालिफ ने गंगा देवी यानी पानी को मानने वाली देवी और पानी देवी बनाई है जिसे लोग आज खुदा समझकर पूज रहे हैं। इसी तरह खुदा मूसा की जलती झाड़ी में जाहिर हुआ तो उसी को उसने इस्तेमाल किया। उसने उस आग को आग देवता बनाकर खड़ा कर दिया कि खुदा जो है वो आग है। आप पूरी किताब मुकद्दस में देखें जहां पर खुदा ने जिन जिन चीजों को इस्तेमाल किया मेरा और आपका मुखालिफ उन्हीं चीजों को अपने मकसद के लिए ट्विस्ट करके खराब करके पेश करता है ताकि लोगों को गुमराह करे। बैन इसी तरह आज चर्चिस के अंदर बहुत सी बिदअत क्यों मौजूद है? वजह यह है कि मेरा और आपका मुखालिफ हमसे कहीं ज्यादा सरगर्म है। वो हमसे ज्यादा काम कर रहा है, हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। आप जहां पर अच्छा बीज बो रहे हैं वो आता और चुपके से उसी बीज के साथ एक कड़वा बीज बोकर जाता है ताकि कड़वा जो है वो इफेक्ट करना शुरू करे अच्छे को और अच्छे बीज की जो नमू है जो नशोनुमा है उसे वो रोकना चाहता है। अगर मैं मोहतात नहीं हूं आप मोहतात नहीं है तो वो कड़वा बीज आहिस्ता 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 उस अच्छे बीज को इतना इफेक्ट करेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना और तबाह होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना है? आपको क्या करना है? वी हैव टू कीप अ डिस्टेंस ताकि वो बीज जो है वो मुझे खराब ना करे, मुझे तबाह ना करे। और यहां पर पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों को क्या लिखा? तुम अपने आप को आजमाओ whether you are fake or real। तुम हकीकी मसीही हो या बनावटी मसीही हो। हम अगर अपने आप को आजमाते हैं तो किताब मुकद्दस में लिखा है हरगिज सजा ना पाते। इसका मतलब है वो जो फेक क्रिश्चियन होता है ना वो बिल्कुल मेरी और आपकी तरह एक्ट करता है। वो चर्च भी जाता है, वो सिताइश भी करता है, वो कलाम भी सुनाता है, वो मनादी भी करता है, वो हदिये भी देता है, वो दहयकियां भी देता है, वो सब कुछ कर रहा होता है। बट ये आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो सब कुछ करने के बावजूद भी क्या है? हकीकी मसीही नहीं है। क्यों? क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने कहा उस वक्त बथेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे ऐ मालिक ऐ खुदा क्या मैंने तेरे नाम से मौजूदे नहीं किए? क्या मैंने बीमारों को अच्छा नहीं किया? क्या मैंने अंधों को आंखें ना दी? क्या मैंने बहनों को कान ना दिए? क्या मैंने मुर्दों को जिंदा ना किया? ये वो क्रिश्चियन है जो दावा कर रहा है कि I'm a Christian, I heal people, I cast out demons, but yet यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं उनसे कहूंगा ऐ मिलाओ दूर हो जाओ क्योंकि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। सिंपल इज दिस। आप मौजूदे करें, मुर्दों को निकालें, बड़े बड़े काम हो, सब कुछ करें। आप अच्छे वैसे कपड़े पहने जैसे क्रिश्चियन पहनते हैं, आप वैसे बाल रखें जैसे क्रिश्चियंस रखते हैं, आप वैसा एक्ट करें जैसा क्रिश्चियंस करते हैं। बट yet at the end of the day when Jesus is going to judge his people वो क्या कहेगा? ऐ मिलाओ दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम काउंटरफिट क्रिश्चियंस हो, तुम झूठे मसीही हो, तुम नकली मसीही हो, तुम बनावटी मसीही हो। और किताब मुकद्दस में लिखा है उस वक्त वो भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा?
अलग करेगा। और अगर मैं मोहतात नहीं हूं अपने एनालिसिस में, तो यकीन जानिए at the end of the day I'm going to be disappointed. I'm going to be disappointed. आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इस नशिस्त में नहीं कि काउंटरफिट क्रिश्चियंस के साइंस क्या होते हैं, वो किस तरह से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर आज के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे और आपको जज करना पड़ेगा खुद को। इससे पेशतर के खुदा मुझे और आपको जज करे, इससे पेशतर के लोग मुझे और आपको जज करें, अपने बनावटी मसीही होने को खुद जज करना शुरू करें और अपने फेक कन्वर्जन से बाहर आए और जेन्युइनली खुदा की हुजूरी में आए। आमीन। जेन्युइनली खुदा की हुजूरी में आए, उससे कहे खुदावंद मेरे मालिक मुझ पर रहम कर। हाँ मैं जानता हूं मैं प्रॉब्लम्स का शिकार हूं, हाँ मैं जानता हूं मुझे चैलेंजेस हैं, हाँ हो सकता है कि जब मैंने तुझे कबूल किया था मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने उस भाई उस बहन के देखे देखे वो खड़ी हो रही है मैं भी खड़ा हो गया, उसने तौबा किया मैंने भी तौबा कर ली, वो मैं क्योंकि उससे जेलस था वो चर्च जाती थी मैं भी चर्च जाना शुरू हो गया, ताकि लोग समझे हाउ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन आया है, ताकि लोग समझे कि मैं कितना अच्छा मसीही हूं। हम बावजूद लोगों को दिखाने के लिए भी अच्छे काम कर रहे होते हैं। और किताब मुकद्दस में 13वें बाब पहला ग्रंथियों में क्या लिखा हुआ है, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। अगर मैं अपना बदन जलने के लिए दे दूं, किसके लिए दे दूं? ये वो मसीही है जो अपना बदन भी ऑफर कर रहा है, किसके लिए? जलने के लिए, यानी वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। मगर उसके बरक्स किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो जो अपना बदन जलने के लिए दे रहा है, इसका मतलब है मोहब्बत ना रखे तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती। तो क्या मतलब हुआ कि वो काउंटरफिट क्रिश्चियन है, वो बनावटी मसीही है, वो दिखावे के लिए अपना बदन दे रहा है, वो दिखावे के लिए अपना रुपया दे रहा है, वो दिखावे के लिए सिफारिश करता है, वो दिखावे के लिए कलाम सुना रहा है, वो दिखावे के लिए फेलोशिप कर रहा है, वो दिखावे के लिए इबादत घर में रखेगा, वो दिखावे के लिए सब कुछ कर रहा है। अगर मेरा मोहतात नहीं है तो याद रखिए खुदा अपने काम में बहुत मोहतात है, वो अपने काम में बड़ा मोहतात है। मैं हो सकता हूं आपको धोखा दे लूं मगर उसे धोखा नहीं दे सकता, हो सकता है आप मुझे धोखे में रखें मगर उसे धोखे में नहीं रख सकते। इसलिए अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेक करें। और यहां पर पौलुस ने दूसरा ग्रंथियों 13वें बाब की 5वें आयत में खुद कहा है कि अपने आप को आजमाओ। क्या करो? टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को आजमाओ। और जो अपने आप को आजमाता नहीं है वो धोखा खाएगा। आप इन निश्चितों पर बैठे हुए एक दूसरे को तो धोखा देते रहेंगे, दे सकते हैं। You pretend to be Christian, you pretend to be believer, आप ऐसा कर सकते हैं, मगर याद रखिए a day is coming, मेरा और आपका हिसाब होगा। आईने में फिर सब कुछ साफ दिखाई देगा। आज आपको अपने दाग आईने में दिखाई नहीं देते मगर दूसरों के दिखाई दे रहे होते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरी को पड़ताल करे, मैं चाहता ही नहीं हूं कि मुझे को देखे, मैं चाहता ही नहीं हूं कि कोई मेरा हिसाब लगाए। नतीजतन मुझे और आपको मायूसी इख्तियार करना पड़ेगी। और मिकाया नबी के दौर में देखें यहोशुआ और शाहे इस्राएल दोनों जंग करना चाहते थे। आपको स्टोरी याद होगी, यहोशुआ और शाहे इस्राएल दोनों दोस्त हैं और शाहे इस्राएल ने यहोशुआ से कहा, ऐ यहोशुआ मैं इरानियों से जंग करने के लिए जा रहा हूं, क्या तू मेरे साथ जाएगा? शाहे इस्राएल का यह सवाल था और यहोशुआ ने कहा हां मैं जाऊंगा, मगर ऐसा कर कि तू मेरे वास्ते किसी नबी का बंदोबस्त कर ताकि वो आए और मुझे बताए क्या मैं जंग के लिए तेरे साथ जाऊं या नहीं जाऊं, क्या हमें फतह होगी या ना होगी। तो उसने कहा हाँ नबी तो बड़े हैं, उसने कहा मंगवा लो। और लिखा 400 नबी उसने इकट्ठे कर लिए, 400 prophets, 400 नबी। और वो 400 नबी आए, खड़े होकर सिफारिश करने लगे, झूमने लगे, गाने लगे, सब कुछ तैयार था, स्टेज लगा हुआ था, साउंड सिस्टम भी था, डांस भी था, पुलपट भी है, चेयर भी है, हर चीज लगी हुई थी, हर चीज वाज इन प्रोग्रेस। मगर वो 400 नबी जो थे उन्हें अब क्या करना था? प्रोफेसाई करना था यहोशुआ और शाहे इस्राएल के हक में। यहोशुआ और शाहे इस्राएल जंग करने के लिए जाए या ना जाए। बैन इसी तरह हमारे लिए बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी प्रोफेसी का हमें इंतजार हो। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं हम उनसे कहते हैं कि हमारे लिए ख्वाब देखो, हमारे लिए रोया देखो, हमें कुछ बताओ। बैन इसी तरह शाहे इस्राएल और यहोशुआ जो यहूदा का बादशाह है वो इंतजार में है कि ये 400 नबी खुदा की आवाज सुन के
जाए कि ये जंग करने के लिए जाएं या ना जाएं। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो दुआ करने लगे, वो सब कुछ कर रहे थे, और फिर अचानक से रूल कुद्स जो है वो वहां पर काम कर रहा था। लिखा कि उन्होंने प्रोफेसाई करना शुरू कर दिया और कहने लगे, ऐ यहोशू, ऐ शाह इस्राएल, हम देख रहे हैं कि तुम जंग करने के लिए जा रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, जंग करने के लिए जा रहे हो और तुमने बड़ी फतह पाई है, दुश्मन खेत आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, रुखेते जा रहे हैं, और तुम बड़ी फतह पाकर कामयाब हो रहे हो। अब यहोशू ये सारा कुछ सुन रहा था। शाह इस्राएल तो यही बात सुनना चाहता था, मगर यहोशू सच सुनना चाहता था। शाह इस्राएल जो है वो काउंटरफिट क्रिश्चियंस जो है या काउंटरफिट प्रॉफिट्स जो है उनसे धोखा खा रहा था। वो 400 है, 400 नकली बनावटी झूठे नबी, मैं और आप इजीली जो है वो इंक्लाइन हो जाए उनकी तरफ। और शाह इस्राएल वो भी बादशाह और शाह यहूदा यहोशू वो भी बादशाह, दोनों खड़े हुए देख रहे हैं। और यहोशू ने जब उन 400 की प्रोफेसी को सुना तो उसके अंदर हलचल चली। उसने कहा कि ये सब के सब एक आवाज है, एक आवाज लगा रहे हैं, इन्होंने जगानगत कर लिया है, इनके अंदर कोई डिसयूनिटी नहीं है, ये इकट्ठे कह रहे हैं कि जाओ जंग करके वापस आओ, तुम जीतोगे। उसके बाद यहोशू के अंदर जब रूह कुद्स की हलचल चली, उसने हिलाया शाह इस्राएल को और कहने लगा, ये 400 नबी एक ही बात कर रहे हैं, क्या इस्राएल में कोई और नबी है? ध्यान से सुनिएगा, क्या इस्राएल में कोई और नबी है? शाह इस्राएल ने कहा, हाँ एक है। कितने? एक है, मगर वो कभी भी मेरे हक में बोलता नहीं है। इसका मतलब वो एक that was being skipped, जिसे छोड़ा जा रहा था, जिसे रुकेदा जा रहा था, जिसे इग्नोर किया जा रहा था। यहोशू ने कहा, उस एक को मेरे पास लेकर आओ, हम उसकी प्रोफेसी भी सुने, उसकी नबूवत भी सुने कि वो तेरे और मेरे हक में क्या कहता है। अब शाह इस्राएल को क्योंकि मालूम था कि वो उसके हक में कभी नहीं बोलता, मगर वो था सच्चा। अगरचे वो शाह इस्राएल को खुश नहीं करना चाहता था, मगर था वो सच्चा। बाज़ हम एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में, एक दूसरे को प्लीज करने के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत से ऐसे स्टेप्स लेते हैं, बहुत से ऐसे इक़दाम करते हैं जो शायद ना मेरे हक में हो, ना आपके हक में हो, ना उसके हक में हो जिसके हक में आपको फैसला ले रहे होते हैं। शाह इस्राएल को यह लग रहा था कि अगर वो उस अकेले एक नबी को बुलाएगा उन 400 नबियों के खिलाफ, तो उस एक की गवाही उन 400 नबियों पर भारी हो सकती है। वो आकर यह कहेगा कि तू जंग करने के लिए ना जा, तो उसका मकसद फौत हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उस एक को भी बुलाए। होना तो यह चाहिए था कि 401 होते, मगर यहां सिर्फ उसने 400 बुलाए। तो शाह यहूदा ने कहा कि उसे बुलाओ, और किताब मुकद्दस में लिखा उसने समन भेजे और उस नबी को यानी मिकाया नबी को, मीका को बुलाया गया। और जब वो मिकाया आया तो मिकाया से यहोशू ने कहा, ऐ मिकाया, मैं चाहता हूं कि तू हमारे वास्ते प्रोफेसाई कर, तू हमारे वास्ते नबूवत कर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि खुदा ये चाहता है कि नहीं चाहता, हम जंग करें या ना करें, हम जीत कर आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि मिकाया अकेला आदमी है और 400 एक तरफ है। बाज़ तो बंदा वैसे प्रेशराइज होकर किसी की फेवर में चला जाता है कि यार 400 एक तरफ है और मैं अकेला एक तरफ हूं, तो चलो वही कहो जो 400 कह रहे हैं। जरूर एक अनपॉपुलर डिसीजन लेना है, जरूर कोई अनपॉपुलर बात करनी है, मकबूल होने की बात है ना। 400 कह रहे हैं, मैं तो बुलाया गया हूं, बादशाह ने मुझे अपने हुजूर में खड़ा तो कर ही दिया, तो क्यों ना वही कहूं जो 400 कह रहे हैं। मगर वो नबी जो था वो बनावटी नबी नहीं था, वो झूठा नबी नहीं था, वो सच्चा था, वो रास था, और वही कुछ कहना चाहता था जो ऊपर से आ रहा था। वो बादशाह को खुश नहीं करना चाह रहा था, वो लोगों को खुश करना नहीं चाह रहा था, वो खुदा को खुश करना चाहता था। पौलुस रसूल ने कहा कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का दोस्त ना होता, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो बाज़ औक़ात हम लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोगों की निगाह में मकबूल होने के चक्कर में कई दफे ऐसे इक़दाम करते हैं, ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उनके लिए भी तबाही का बायस होते हैं। आमीन, आयु में। तो जो ही वो आया, वो खड़ा था 400 एक तरफ है,
जाता मगर वो नहीं हुआ। हो सकता है वो मगलूब हो जाता कि यार मैं क्यों ऐसी बात कहूं, जब 400 एक तरफ कह रहे और बादशाहों को भी ये बात पसंद आ रही है, तो मैं क्यों ऐसी बात कहूं। मगर वो था नबी, सच्चा था, खुदा से बातचीत करता था, उसे किसी का डर नहीं है, उसे किसी का खौफ नहीं है, उसने किसी का कुछ लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ इतना मालूम है कि जिसने खड़ा किया है उसे खुश करना है, उसे खुश करना है। That's it, ये उसे खुश करना है। इसलिए वो खड़ा हुआ, दुआ करने लगा। किताब मुकद्दस में लिखा जब वो कर रहा था तो उसने आवाज लगा कर कहा, यहोशूफत, शाह इस्राएल, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे लोग जंग के लिए गए हैं मगर बड़े खेत आए हैं, बहुत से मारे गए हैं, बहुत से कत्ल हुए हैं, बहुत से लोग खेते गए हैं, बहुत सी खानदान तबाह हो गए हैं, और तू जंग हार कर वापिस आ रहा है। अब उसने हर वो बात जो झूठे नबियों ने कही थी उनके खिलाफ कही है, और लिखा उन नबियों में से भाग कर आया, एक ने थप्पड़ मारा मिकाया नबी के मुंह पर, उसने उसे मारा और कहने लगा कि तू कौन सी रूह है जो तेरे अंदर है, तू कैसे कह सकता है कि ये जंग हार कर आएगी। मगर वो उसे इस बात का खौफ नहीं था कि 400 उस पर अटैक करने को है, उसे मारने को है, मगर उसने सच बोलना है, उसने झूठ नहीं बोला, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा। बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज पर मजबूर हो जाते हैं, हम समझौता करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो तालीमी हो, वो जिस्मानी हो, वो रूहानी हो, वो किसी किस्म का भी क्यों ना हो, मगर खुदा चाहता है कि आप अच्छे दाने हैं, अच्छे रहिए। आपके इर्द गिर्द बुरी फसल कितनी भी क्यों ना हो, आपको नहीं बदलना। आमीन, आपको नहीं बदलना। आप लोगों के प्रेशर में ना आए, आप खुदा की बात कहें, आप कलाम की बात कहें, आप सच कहें, आप हक कहें, क्योंकि जिसके साथ आप खड़े हैं वो आपके साथ खड़ा है और आपको कभी भी मायूस होने नहीं देगा। और जब उसने मिकाया ने ये कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम खेत आ रहे हो, मारे जा रहे हो, तबाह हो रहे हो, तो उसे नुकसान का सामना था, उसे मौत का सामना था। और शाह इस्राएल ने आवाज लगाकर कहा, यहोशूफत, मैं ना तुमसे कहता था कि ये कभी मेरे हक में गवाही नहीं देगा। हालांकि ये उसके हक में थी, वो ना जाए, क्योंकि इसका जाना इसके लिए तबाही था, इसका जाना बनी इस्राएल के लिए तबाही था, इसका जाना उनके लिए मौत, हलाकत, नाकामी, गुलामी था। मगर क्योंकि उसका दिल कर रहा था कि वो ये करे। बात बात हमारा दिल करता कि हम ये करें, हम ये करें, हम ये करें, मगर खुदा नहीं चाह रहा था कि हम ये करें। हम वो करना चाहते हैं जो हमें प्लीज करता, खुश करता है। हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात के मुताबिक हम वो करना चाहते हैं जो हमें खुश कर रहा है, मगर बाज़ औक़ात खुदा की वो मर्जी नहीं होती। इसलिए मुझे और आपको खुदा की सुननी है कि खुदा क्या कह रहा है। और शाह यहोशूफत ने 400 की नहीं सुनी, एक की सुनी। मेजॉरिटी बाज़ औक़ात गलत भी कहती है। मेजॉरिटी बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि नकारा खलक को नकारा खुदा समझो, जो बहुत सारे एक ही गल कर रहे हो तो समझो खुदा दी आवाज है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात एक ही आदमी होता है जो खड़ा होकर कहता है, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो। एक ही शख्स होता है जो खड़ा होकर ये कहता है। मिकाया एक था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक था, यीशु मसीह एक था। और जब इस तरह की कैफियत हो तो मुश्किल होता है ऐसे फैसला करना। मगर मैं आपसे आज इल्तिमास करूंगा कि आप ऐसे कड़वे दाने जो आपके साथ उग रहे हैं उन्हें अपने ऊपर असर ना होने दें उनका। और यीशु मसीह ने कहा कि देखिए ये जो ना यीशु मसीह, ये जो मालिक है ये खुदा को ज़ाहिर करता है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर एक सर्वेंट्स की बात कहेंगे कि नौकरों ने आके ये फरिश्तगान है। और कड़वे दाने जो है वो ऐसे लोग हैं जो इब्लीस ने बोए हुए हैं हमारे चर्चिस के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर, हमारे घरानों के अंदर, हमारी जिंदगियों में, हमारे मुल्कों में, ये उसने बोए हुए हैं कड़वे दाने। और ये बावकात हम समटाइम्स वी ब्लेम आवर लीडर्स, हम अपने लीडर्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये ठीक नहीं कर रहे। अब 12 शागिर्द यीशु मसीह ने चुने थे, उनमें से एक यहूदा था कड़वा दाना। अब यीशु मसीह ने तो कड़वे दाने को नहीं था
चुना, उसने एक अच्छे दाने को चुना था, मगर उस अच्छे दाने का डिसीजन अपने हाथ में अच्छा नहीं था। उसने अलाउ किया कि इब्लीस उसकी जिंदगी में काम करे और उसे आले और वो खुदा यीशु मसीह के खिलाफ खड़ा। बहन, इसी तरह चर्चिस के अंदर बहुत से मसीही हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलाउ करते हैं मुखालिफ को कि वो उनके अंदर आए, वो उनके अंदर काम करे, वो उन्हें टेक ओवर करे और उसके बाद उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे। वो वैसा ही कर रहे होते हैं जैसा दीगर क्रिश्चियंस कर रहे होते हैं, वो वैसा ही अमल कर रहे होते हैं जैसे दीगर क्रिश्चियंस कर रहे होते हैं, मगर मैं और आप उन्हें इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। याद रखिए, रूहुल कुद्स जो है वो हमारी रहनुमाई उस वक्त करता है जब मुकम्मल तौर पर रूहुल कुद्स के सुपुर्द हम हुए हो। आप शक्ल को देखकर कह देंगे कि ये झूठा मसीही। आप चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह उस रोज ये कहे, मिलाऊं तू दूर हो, मैं तुझे जानता भी नहीं हूं। आपकी सारी मेहनतें, मुशक्कतें, रियाजतें खाकस्तर हो जाए। आपने इतनी कुर्बानियां मजहबों पर चढ़ाइयां बगैर ये जाने के वो कुर्बानी कबूल हुई भी है कि नहीं, तो फिर क्या होगा? उस वक्त मेरे लिए और आपके लिए क्या होगा जब मुझे मायूसी का सामना करना पड़े? अच्छे और बुरे हमेशा हमारे साथ हैं। आप एक परफेक्ट खेत खड़ा नहीं कर सकते, आप मुकम्मल अच्छी फसल खड़ी नहीं कर सकते। आपने बीज बोने वाले की मिसाल सुनी है, उसने बीज बोया, उसका काम है बीज बोना। वो अपने बीज बोने में कोताही नहीं कर रहा, वो दिन को भी बोता है, रात को भी बोता है, वो हर जगह पर बोता है। मगर बीज कहां कहां पर गिरता है, किस किस्म के लोगों में गिरता है, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, ये बोने वाले पे नहीं है, ये बीज लेने वाली जमीन पर है। जमीन कैसी है? पथरीली है, झाड़ियों वाली है, जरखेज है, हमवार है या नहीं है? आप चेक करें कि आप कैसी जमीन है। सदियों से, सैकड़ों सालों से मसीहियों में कलाम बांटा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, और मैं समझता हूं ये वो चीज है जो दुनिया को बदल रही है, मगर उस दुनिया को बदल रही है जिसने अपने आप को बदलने के लिए पेश किया हुआ है, जिसने अलाउ किया हुआ है कि मुझे नरम किया जाए ताकि मैं क्या करूं, तब्दीली की तरफ बढ़ूं। मैं फेक मसीही ना जाना रहा हूं, बल्कि हकीकी मसीही जाना रहा। आप अपना एहतसाब कीजिए, मैं अपना एहतसाब करूं। चर्चिस में प्योरिटी जो है, चर्चिस में खालिस मसीही जो है, वो उस वक्त पैदा होते चले जाएंगे जब मैं और आप मुसलसल अपने आप को चेक करेंगे। जब मैं चेक ही नहीं करता, क्योंकि मेरा मेयार मेरे साथ बैठे वाला मसीही है, तो फर्क जरा नहीं पड़ेगा। अगर मेरा स्टैंडर्ड जो है वो भाई दिपिश है, तो शायद मैं मायूस हो जाऊं, वैसे ग्रो ना करूं। अगर आप मुझे अपना स्टैंडर्ड बना रहे हैं, तो शायद मैं आपको मायूस कर दूंगा। मगर आपका स्टैंडर्ड अगर यीशु मसीह है, तो आप कभी मायूस नहीं होंगे। आप हर रोज ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजरेंगे। मुझे नहीं, यीशु मसीह को देखिए, अपने साथ बैठे हुए को नहीं, यीशु मसीह को नजर में रखें, और फिर आप हमेशा तब्दीली में बढ़ते चले जाएंगे। एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें में जाएंगे। आप नीचे नहीं आएंगे, आप ऊपर जाएंगे। आमीन। इसलिए बनावटी मसीही जो है वो मुझे और आपको धोखा देगा, मगर यीशु मसीह को धोखा नहीं दे सकता। आमीन। आइए बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखेड़ दो। आप इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है, मालिक क्या कह रहा है। बाज़ औक़ात मुझे कई एक ने सवाल किया कि यीशु मसीह को मालूम था कि यहूदा ने उसे पकड़वाना है, तो क्यों यीशु मसीह ने यहूदा को उसमें से नहीं निकाला, अपनी फेलोशिप में से क्यों नहीं निकाला? तो मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूं कि एक अच्छे लीडर की निशानी ये है कि वो खुद किसी को किक आउट नहीं करता, किसी को खुद नहीं निकालता, बल्कि लोग अपने मंतकी इंजाम तक खुद पहुंचते हैं। वो अपने मंतकी इंजाम तक खुद पहुंचेंगे। बुरी चीज, बुरा शख्स जो है वो अपना रास्ता आप बना रहा है तबाही की तरफ। आप उसे मौका दे रहे हैं कलाम सुनाने का, सिखाने का। हमारे पाकिस्तान में जो मेरा चर्च था, जहां पर मैं मनादी करता था, यहां जो मैंने प्लांट किया, वहां पर एक भाई थे, उसे अननेम छोड़ूंगा, और जब उन्होंने चर्च ज्वाइन किया तो उसकी
کی بابت بہت سی افواہیں تھیں ان کے بابت کہ یہ جو ہے وہ بناوٹی مسیحی ہے. تو وہ چرچ آتا ہے, سب کچھ کرتا, دہی یقیاں دیتا, سب کچھ کرتا ہے. اسٹل مجھے ایک خادم ملا, ہمارے گھر آیا, بیٹھا, ڈاکٹر جمیل ناصر, بیٹھ کے بات یہ کرنے لگے. مجھے کہنے لگے کیا وہ شخص جو ہے ایکس وائی زی, اس نے آپ کا چرچ جوائن کر لیا؟ میں کہا ہاں. وہ چلا گیا. پھر کچھ سالوں کے بعد آیا, پھر ملاقات ہوئی, کہنے لگا وہ آپ ہی کے چرچ میں ہے ایکس وائی زی؟ میں کہا ہاں. کہنا کب تک یہ بدرواں سنبھالی رکھو گے؟ کب تک یہ ڈیمنز آپ اپنے چرچ میں پالے رکھیں گے؟ اب یہ سوال اس کا میرے لیے تھا. بین اسی طرح جیسے یہ فرشتگان جو ہے, جیسے یہ نوکر جو ہے اپنے مالک کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کیا مالک اس فصل میں جو برے دانوں کی فصل اگی ہے اسے اکھاڑ کر باہر نہ پھینک دیں؟ تو مالک کا جواب سن رہے ہیں انہیں بھی ویسے ہی بڑھنے دو جیسے اچھے دانوں کی فصل بڑھ رہی ہے, کیونکہ جب وقت آئے گا تو میں انہیں کاٹوں گا. اس لیے میرا اور آپ کا کام انہیں کاٹنا نہیں ہے. تو میں نے بھائی سے انہیں جواب دیا کہ یہودا کو یسوع مسیح نے نکالا نہیں ہے, یہودا کا اسے معلوم تھا. بہن اسی طرح ہمیں بہت سے لوگوں کا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون ہے, یہ کون ہے, بھائی کیسا ہے, بیٹی کیسی ہے, بھائی بیٹا کیسا ہے, کون سے لوگ کیسے کیسے ایکٹ کرتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے نا. آپ کو بھی اسی طرح پتا ہے. ہم انہیں اپنی زندگی میں پھر بھی الاؤ کرتے ہیں کہ کون کیسی کنسپریسی کر رہا ہے, کون کیسا پلان کر رہا ہے, کون کیسا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے, کون کیسا رہا ہے. ہم انہیں we don't uproot them, ہم انہیں نکالتے نہیں ہیں but we tolerate them. ہم انہیں موقع دیتے ہیں, ہم انہیں بڑھنے دیتے ہیں کہ وقت آئے گا تو خدا خود انہیں ہماری لائف سے, ہماری فصل سے الگ کرے گا. میرا اور آپ کا کام صرف بیج بونا, اچھا بیج بونا, محنت کرنا, اسٹرگل کرنا ہے. آپ کی زندگی میں اگر کوئی کڑوا بیج ہے تو آپ یسوع مسیح پر چھوڑ دے اور کہے خدا تو فیصلہ کر, تو میری لائف سے یہ جو شخص ہے, یہ جو بہن ہے, یہ جو بھائی ہے, میرے لیے پرابلمز کا باعث ہے. میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں مگر تو ایک ایسا مجھے سیف ایگزٹ دے کہ میں خاموشی سے اس سے الگ ہو جاؤں. اس کا اثر کہیں مجھ پر نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ یہ جہاں تو خود تو تباہ ہے ہی ہے, مجھے بھی تباہ نہ کر دے. اور ایسے مسیحی جو ہیں وہ کلیسیاؤں کی تباہی کا باعث ہے. اگر کلیسیا محتاط نہیں ہے, اگر انہیں پتا نہیں ہے کہ اصل کون ہے اور نقل. میں اور آپ بینک میں کام کرنے والے ان مسیحیوں کی طرح بنے جنہیں فوری طور پر پتا چل جاتا ہے کہ اصلی نوٹ کیڑا ہے, نقلی نوٹ بنے گے تو پھر ہمیں کوئی چیز افیکٹ نہیں کر سکتی. آمین آمین ہاللویا. آئیے آج اسی نوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کی بھی بچائیں, تاکہ ہم اس روز حشر مایوس ہو کر وہاں سے نہ لوٹیں بلکہ خوشی کے ساتھ, شادمانی کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور وہاں پر نعرے لگائیں اور خدا ان کی ستائش کریں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. آئیے اس سے کہیں خداوند آسمانی باپ دیکھ, میں تیری حضوری میں آتی ہوں. میں جانتا ہوں کہ میرے پاس اور میرے حلقہ میں بہت سے ایسے مسیحی ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خداوند نقلی ہیں, جو ایکٹ کرتے ہیں اچھا بننے کا, اچھا دکھائی دینے کا. جو بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو میری طرح کپڑے پہنتے ہیں, جو میری طرح ایکٹ کرتے ہیں. جب میں ہدیہ دیتا ہوں تو وہ بھی دینا چاہتے ہیں, جب میں گاتا ہوں تو وہ بھی مجھے دیکھ کر گانا چاہتے ہیں, جب میں اچھا پرفارم کر رہا ہوں تو وہ بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں. ہاں مگر ان کی نیت, ان کی انٹینشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہ تیری بادشاہی کے لیے نہیں کر رہی بلکہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. وہ تیری سلطنت کے لیے نہیں کر رہے بلکہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. باپ آسمانی مجھ پر فضل کر, مجھ پر رحم کر کہ میں اس بناوٹی مسیحی سے, اس فیک کرسچن سے ایسا فاصلہ رکھوں کہ وہ مجھے افیکٹ نہ کرے, اس کا سایہ مجھ پر نہ پڑے, اس کی کرنیں مجھ پر نہ پڑے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری حقیقی مسیحی زندگی بری طرح متاثر ہو اور میں تباہ ہو جاؤں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بیج, کوئی ایسا دانا, کوئی ایسی جڑی بوٹی آپ کو افیکٹ کر رہی ہے, آپ کو تباہ کر رہی ہے, تو ڈسٹنس اختیار کیجئے. آپ اسے اکھاڑیے نہ, خدا خود کام کرے گا اور اسے آپ کی زندگی سے الگ کر دے گا. آپ خدا سے دعا کیجئے خدا یہ شخص, یہ بیٹی, یہ بھائی, یہ آدمی تیری فصل کے لیے, تیری کلیسیا کے لیے, تیرے لوگوں کے لیے خدا نقصان کا باعث ہے, اسے خود الگ کر. یسوع مسیح اس روز بھیڑوں کو بکریوں کو جدا کرے گا. آپ اپنا احتساب کریں, آپ بھیڑ
बकरी हैं? आप कड़वे दाने हैं या अच्छे दाने हैं? आप असली रुपए हैं या नकली रुपए हैं? असली की कदर बेशकीमत है, उसे संभाला जाता है, उसकी परवरिश की जाती है, उससे ट्रेनिंग की जाती है, उससे बिजनेस किया जाता है, उसे इन्वेस्ट किया जाता है, उस पर एतकाद किया जाता है, उस पर भरोसा किया जाता है, उसे दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर इसके बरक्स जो नकली है, ना वो किसी की नेकी के लिए, ना वो किसी की भलाई के लिए, ना आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, ना उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना उससे आप मुनाफा ले सकते हैं, ना उसे आप अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि ऐसी रुपए को, ऐसे फेक क्रिश्चियंस को खुदा खुद उखाड़ फेंकता है। और अगर आप नकली करेंसी की तरह एक्ट कर रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि आप कूड़े का हिस्सा होंगे, किसी ट्रेजरी का नहीं। आप किसी बैंक का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि आप किसी ट्रैश का हिस्सा होंगे। याद रखिए, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ट्रैश बनना चाहता हो, जो क्या समझता है खुदा हाँ मैं ट्रैश ही ठीक हूं। नहीं, मैं और आप खुदा के खून से खरीदे गए लोग हैं। अगर आज तक आपने फील नहीं किया, अगर आज तक आपने रियलाइज नहीं किया कि मेरा कन्वर्जन छूटा था या छटा था, तो आज आपके पास वक्त है। यीशु मसीह की सलीब आज भी वैसे की वैसी है, वहां से खून आज भी जारी है। अगर आप बनावटी हैं, अगर आप दिखावे वाले हैं, अगर आप हीला बहाना करने वाले हैं, अगर आप ऐसे मसीही हैं जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उससे मैं याद रखिए, उसे मेरा और आपका मुखालिफ इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है। आइए दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के मुनाफे के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए और अपनी बेहतरी के लिए असली मसीही बने। आइए दहना हाथ अपना है फिजा में बुलंद कीजिए, मेरे साथ कहिए, आए आसमानी बाप, मैं तेरी हजूरी में आता हूं, मुझ पर रहम कर। खुदा मैं तेरे फजल का मुतमनी हूं। खुदा अपने फजल को भेज कि उन कड़वे दानों की फसल से मुझे महफूज करे जो मेरे और तेरे मुखालिफ ने बोए हैं। खुदा रहम कर, फजल कर कि मैं अपना असर ना खो जाऊं, मैं तब्दीली के सफर में कभी नाकाम ना हूं, बल्कि खुदावन हर रोज बढ़ता चला जाऊं, तेरी शक्ल पर ढलता चला जाऊं और दूसरों को बचाऊं, जो गिरे हैं उन्हें उठाऊं, और खुदावन मुझसे किसी को ठोकर ना लगे, किसी को नुकसान ना हो। खुदा मैं दूसरों की भलाई करूं, दूसरों की बेहतरी सोचूं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।